علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو وہ سب جو کمرے میں سر جوڑے عید کی تیاریاں ڈسکس کر رہی تھیں لپک کر باہر بالکنی میں جا پہنچی۔ جانور آ گیا ہمارا، جانور آ گیا، دیکھیں تو صحیح ابا کیا لے کر آئے ہیں۔ زینب اپنی کزنز کے ہمراہ بالکنی سے تقریباً آدھی نیچے لٹکی جھانک رہی تھی۔ نیچے گلی میں ان کے گیٹ کے سامنے گاڑی آ کر رکی تھی جس میں ان کی قربانی کا جانور تھا۔ پوری گلی کے بچے گاڑی کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بابا اتر کر پیچھے آئے جہاں پچھلے حصے میں قید قربانی کا بیل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی گاڑی کے پچھلے حصے سے تھکا ہارا حارث نیچے اترا۔ اس کا سارا چہرہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بے اختیار زینب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حارث تو لگتا ہے کہ صحرا سے بیل پکڑ کر آیا ہے، دیکھو تو اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے، سارا کا سارا مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ آپس میں سرگوشیاں کرتی ہوئی ساری کزنز مل کر ہنس رہی تھیں۔ بابا اور حارث بڑی مشکل سے جانور کو گھر کے اندر لے آئے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بیل تھا۔ جیسے ہی بیل گھر کے اندر آیا، بالکنی پر لٹکی ہوئی تمام لڑکیاں ایک ساتھ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگیں۔ چلو چلو نیچے چلو، اپنے بیل کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ہے کیسا، کل تو ویسے بھی قربان ہو جائے گا۔ یہ ساری لڑکیوں کی فوج باہر صحن میں جمع ہو گئی جہاں زینب کے بابا اور اس کے دونوں چچا قربانی کے بیل کو کھونٹے سے باندھ رہے تھے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ حارث نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ساری لڑکیاں بڑے اشتیاق سے بیل کو دیکھ رہی تھیں مگر پاس آنے کی ہمت نہیں کر رہی تھیں۔ حارث نے سوچا ہیرو بننے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بیل کو ہاتھ سے سہلانا چاہا مگر بیچارے کی قسمت ہی بری تھی۔ بیل جو پہلے ہی غصے میں تھا اس نے بپھر کر ایک لات حارث کو دے ماری۔ بیچارہ حارث دور جا گرا، ساری ہیرو گیری نکل گئی۔ زینب اپنی کزنز کے ساتھ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ اپنے منگیتر کی یہ حالت دیکھ کر اسے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ بڑا آیا ہیرو بننے والا، ایک مرغا تو پکڑا نہیں جاتا اس سے، چلا ہے بیل پکڑنے۔ حارث کو شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے میں بابا نے ساری لڑکیوں کو آواز دی، آ جاؤ، جس نے بیل کو ہاتھ لگانا ہے میرے سامنے لگا لے، ابھی یہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ سبھی دوڑ کر بابا کے پاس چلی گئیں سوائے زینب کے۔ اسے پتا تھا حارث کا مذاق اڑانے کا یہی موقع تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اندر حارث کولر سے پانی کا گلاس بھر رہا تھا۔ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ پہلے ہی بامشکل سانس لیتے ہو، اوپر سے تمہیں بیل نے لات مار دی ہے، کہیں کوئی ہڈی وڈی تو ٹوٹ نہیں گئی؟ کتنی بار تمہیں مشورہ دیا ہے، تمہیں جم جانا چاہیے، کوئی باڈی بناؤ تاکہ تھوڑے اسٹرانگ بھی لگو۔ دبی دبی سی ہنسی ہنستے ہوئے زینب مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی مگر حارث خاموشی سے پانی پی رہا تھا۔ حارث زینب کا چچا زاد کزن تھا اور بچپن کا منگیتر بھی۔ دونوں یہ بات جانتے تھے مگر ماڈرن زمانے کے لڑکے لڑکیوں کی طرح ایک دوسرے سے رومانٹک گفتگو کرنے کے بجائے ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ زینب حسین تھی تو حارث بھی کچھ کم نہ تھا۔ لمبا چوڑا قد اور وجہی سراپا، وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا مگر نہ جانے کیوں زینب اور حارث کی نوک جھونک کبھی ختم ہی نہ ہوئی تھی۔ منڈی میں سے اس بیل کو میں ہی پکڑ کر لایا ہوں اور میں نے ہی اسے گاڑی میں چڑھایا تھا۔ یقین نہیں آتا تو میری حالت ہی دیکھ لو، اور کہاں سے تمہیں کمزور لگتا ہوں میں؟ 6 پیک بنائے ہوئے ہیں میں نے، ساری لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ اپنی شکل دیکھی ہے، 2 کلو میک اپ لگا کر بھی بڑی مشکل سے رنگ گورا کرتی ہو۔ شکر ہے اللہ کا میں بغیر میک اپ کے ہی اتنا خوبصورت ہوں۔ واہ،
हारिस ने बाकायदा दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया अदा किया था। जैनब जो इस इरादे से आई थी कि अच्छी तरह हारिस का मजाक उड़ाएगी, उसे तो लेने के देने पड़ गए। वो मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी, इसलिए मेकअप कर रखा है, हर वक्त थोड़ी ना करती हूं। जैनब के अंदर की खफकी उसकी जबान पर आ गई। वैसे भी वो ज्यादा देर हारिस के सामने टिक ना सकती थी, इसीलिए मुंह बनाकर अंदर की तरफ चली गई। हारिस खुलकर मुस्कुरा दिया। घूंट घूंट करके पानी पीता हुआ वो मुसलसल वहीं देखे जा रहा था जहां से जैनब गई थी। शाम हुई तो लड़कियों ने शोर मचा दिया कि उन्हें मेहंदी लगवाने जाना है। हारिस इतनी सारी लड़कियों का इकलौता काज़न था। सब उसी के सर सवार थी, सिवाय जैनब के। वो तो दोपहर के बाद से कहीं नजर ही नहीं आई थी। लड़कियों का मुतालबा जोर पकड़ गया तो हारिस झुंझला गया। अब इतनी सारी लड़कियों को एक गाड़ी में भरकर कहाँ लेकर जाऊं? तुम लोग घर में ही रहो, मैं मेहंदी वाली लड़की घर ले आता हूं। तुम सबको मेहंदी लगा देगी तो उसके बाद उसे ड्रॉप कर दूंगा। मेरे एक दोस्त की वाइफ बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, थोड़ी जरूरतमंद भी हैं। अच्छा है, उनकी मदद हो जाएगी। लड़कियों को और क्या चाहिए था, घर बैठे मेहंदी लग रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हारिस मेहंदी वाली को ले आया। सारी लड़कियां उसके गिर्द घेरा बनाकर बैठ गईं। हारिस ने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। जैनब अभी तक ना आई थी। मरियम, जैनब कहाँ है? उसने मेहंदी नहीं लगवानी क्या? फिर बाद में ना मुझे बोले कि मैं उसे बाजार से जाकर मेहंदी लगवा कर लाऊं। मैं अब किसी को भी कहीं नहीं लेकर जाऊंगा यार, जाओ उसे ढूंढो। हारिस ने अपनी छोटी बहन मरियम से पूछा। वो बेताबी से अपनी बारी आने की मुंतजिर थी। बेध्यानी से बोली, उसे पता नहीं क्या हुआ है, सड़ियल सा मूड बनाकर अपने कमरे में पड़ी हुई है। मैंने बोला भी था मेहंदी लगवा लो, पर शायद उसका मूड नहीं है। मरियम तो जवाब देकर सिदरा के साथ बातों में मशगूल हो गई। अबे यार, कहीं उसने दोपहर वाली बात का बुरा तो नहीं मना लिया? मगर वैसे तो बहुत झीठ है, बुरा मनाते ही नहीं है। आज क्या हुआ है? हारिस दिल ही दिल में सोचता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके कमरे की जानिब चल दिया। उसके कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और अंधेरा भी। हल्की सी दस्तक देकर वो जैनब के कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चुड़ैल कहीं सो तो नहीं गई? मगर मेहंदी लगवाए बगैर ये सो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी जब कल ईद हो। हारिस ने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन दबाए तो कमरे में लाइट ऑन हो गई। सामने ही वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसने दोनों बाजुओं से अपनी गिर्द हाला सा बना रखा था और अपना चेहरा उसमें छुपा रखा था। उस सड़ियल, उठ के मेहंदी लगवा लो, सुबह ईद है। सुबह रोती फिरोगी कि तुम्हें किसी ने मेहंदी के लिए पूछा ही नहीं। हारिस ने आवाज लगाई, मगर जैनब ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स ना दिया। हारिस ने गौर किया तो वो हौले हौले लरज रही थी। अरे ये क्या, ये तो रो रही है। एकदम ही हारिस के दिल को जोर से कुछ हुआ। क्या बात है जैनब, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या मरियम से लड़ाई हुई है? मुझे बताओ, मैं अभी उससे पूछता हूं। हारिस की आवाज में अचानक ही एक फिक्र सी आ गई थी कि वो खुद हैरान रह गया। वो जो हर वक्त जैनब से लड़ता झगड़ता रहता था, उसके जरा से रोने पर किस कदर परेशान हो रहा था। जैनब ने बेयकीनी से सर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशानात थे। बड़ी बड़ी आंखों में अभी भी आंसू चमक रहे थे। वो हैरान निगाहों से हारिस को देख रही थी, जो उसके रोने पर परेशान हो रहा था। कौन सी लड़कियां मरती हैं तुम पर? जरा बताओ तो। तुम ही ने दोपहर में कहा था ना, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। कभी सीधे मुंह मुझसे तो बात की नहीं। ना जाने किन लड़कियों के साथ फिरते रहते हो, जिन्हें ये भी पता है कि तुम्हारे सिक्स पैक है। जैनब की आंसुओं में डूबी हुई आवाज निकली तो हारिस को चंद लम्हे तक तो उसकी बात ही समझ नहीं आई, और फिर जब समझ आई तो एक जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ा। ओह माय गॉड, तुम
तुम इस बात की वजह से रो रही हो? यानी तुम्हें जेलसी फील हो रही है कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ घूमता हूं जो मुझ पर मरती हैं? शरारती सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अब हारिस उससे पूछ रहा था। ज़ैनब सटपटा गई। अपनी बेवकूफ़ी के हाथों वो उसके ऊपर वो राज अयां कर बैठी थी जो वो खुद से भी छुपाती थी। उसने तो कभी जाहिर ही नहीं किया था कि वो हारिस से इतनी मोहब्बत करती है कि उसे हारिस का दूसरी लड़कियों से बात करना तक बुरा लगता है। कुछ नहीं कह रही मैं जा रही हूं और मुझे कोई नहीं लगवानी मेहंदी, वो नाराजी से कहती हुई उठकर जाने लगी, मगर तब चौंक गई जब एक झटके से हारिस ने उसका हाथ थाम लिया। ज़ैनब का दिल उछलकर हल्क में आ गया। हारिस ने ऐसा सब पहले कब किया था? वो तो हमेशा काट खाने को दौड़ता रहता था। तुम्हें जाने भी कौन दे रहा है? अभी तुम्हारे अलावा और है ही कौन जो मुझ पर मरे? मैं तो बस इंतजार ही कर रहा हूं कि कब तुम मेरे निकाह में आओ और मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन चूंकि निकाह से पहले कुछ हुदूद है, इसलिए मैं तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं होता। मगर क्या तुम्हें मेरी आंखों में भी जाहिर नहीं होता जो कुछ मेरे दिल में है? ज़ैनब ने पलट कर उसकी आंखों में देखा, मगर हारिस की आंखें जज्बात से इस कदर बोझल हो रही थीं कि ज़ैनब को उसे नजर मिलाना मुश्किल हो गया। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। हारिस जान गया कि उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। अच्छा आप चलो, तुम्हें मेहंदी लगवा कर आता हूँ और चूड़ियाँ भी दिलवाता हूँ। कलीद है, मगर मेरी तो तब होगी जब तुम्हारे हाथों पर लगी हुई मेहंदी में मेरा नाम लिखा होगा। हारिस की शोख सी आवाज पर वो शर्मा कर रह गई। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरी मंगेतर हो और वैसे भी हम दोनों कजिन्स भी तो हैं। बाकी सारी लड़कियां तो नीचे मेहंदी लगवा रही हैं, सिर्फ तुम ही रहती हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेहंदी सबसे अच्छी लगे, इसलिए तुम्हें स्पेशल जगह ले जाता हूं। और तुम्हारा ईद का गिफ्ट भी तो लेना है। ज़ैनब खुलकर मुस्कुरा दी। हारिस का दिल कितना प्यारा था। वो जो ये समझती थी कि वो उसके मुतालिक अपने दिल में कोई जज्बात ही नहीं रखता, आज गलत साबित हो गई। थोड़ी ही देर के बाद बाइक पर उसके पीछे बैठी हुई वो सोच रही थी कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जिसके नसीब में हारिस जैसा प्यारा इंसान है। दोस्तों, ये थी हारिस और ज़ैनब की खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।